Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Noor School and College, Mansehra. Dear student, in the last lecture we discussed about energy and types of energy. So what is energy? Energy is basically the ability of a body to do work is called energy. The ability of a body to do work is called energy. Basically, there are two main categories of energy, that are potential energy and kinetic energy. So what is potential energy? The energy which is stored in an object due to its position are called potential energy. For example, a stretched rubber band, stone raised to a certain height, a car, and water in a dam. All these possess potential energy. So what are kinetic energy? Energy in a body due to its motion are called kinetic energy. For example, a moving car, running boy, moving ball, bullet, fire from gun are the example of kinetic energy. So all these things possesses kinetic energy. We also discuss other form of energy, that is heat energy. Heat energy can be explained with the help of simple experiment. Put one end of the rod on a fire. You will observe that after some time the other end of the rod also become hot. It is due to the transfer of heat energy from one place to another place. Heat is also a form of kinetic energy because here the motion of heat occur, so we can say that it is also a form of kinetic energy. It is a thermal energy that flow from hotter to colder object. हीट एनर्जी बेसिकली हमेशा गर्म चीज़ से ठंडी चीज़ में ट्रांसमिट होती है. वी आल्सो डिस्कस लाइट एनर्जी. लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ आल्सो काइनेटिक एनर्जी. लाइट कैन प्लांट कन्वर्ट light into chemical energy, while light energy help us to see different things in our daily life. So these are the some topic which we discussed in the previous lecture. Now in this lecture we discuss about another form of energy that are called electrical energy. So what are electrical energy? Basically electrical energy क्या होती हैं वो देखते हैं. बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, अगर वो किसी भी कंडक्टर के अंदर मूव करे या वायर के अंदर मूव करे तो उसको बच्चों हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी इज द मूविंग चार्जेस इन अ वायर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी. किसी भी वायर के अंदर चार्जेस का मूव करना उसको इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. ठीक है. और इलेक्ट्रिसिटी बच्चों आपके पास जो होता है, electrical energy is due to the movement of electrical charge through an electrical conductor. Electrical energy is used for lighting the house and for working of different electrical appliances. Electrical energy बच्चों हम घरों के अंदर लाइटिंग के तौर पर यूज़ करते हैं. इसके अलावा हम बहुत सारी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस वगैरह को चलाने के लिए हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करते हैं. सो नेक्स्ट बच्चों हमारे पास आ जाता है साउंड एनर्जी. सो व्हाट आर साउंड एनर्जी? साउंड एनर्जी बच्चों जैसा कि आपने पढ़ा होगा, पिछली ग्रेड के अंदर भी पढ़ा होगा कि साउंड हमेशा आपके पास वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती हैं. जो भी चीज़ आपके पास वाइब्रेशन करती है उससे आपके पास साउंड प्रोड्यूस होती है. साउंड आर प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट. जो भी चीज़ आपके पास वाइब्रेशन करती है उसकी वाइब्रेशन से बच्चों आपके पास उसके इर्द गिर्द जो आपके पास एयर के पार्टिकल्स होंगे या लेट सपोज वाटर पार्टिकल्स हैं या उस किसी भी सॉलिड के कोई पार्टिकल्स हैं. मोस्टली हमारी डेली लाइफ में तो हमारे पास साउंड जो होता है वो एयर के अंदर मूव करते हैं. तो लेट सपोज हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट उसने वाइब्रेशन की, उसकी वाइब्रेशन से जो उसके सराउंडिंग में आपके पास एयर प्रेजेंट था, उस एयर के मालिक्यूल्स क्या हुए, उसकी वाइब्रेशन से आपके पास एयर के मालिक्यूल में भी वाइब्रेशन आ गई. वो वाइब्रेशंस एयर के मालिक्यूल आगे दूसरे मालिक्यूल को ट्रांसफ़र कर रहे थे. तो इसी तरह एयर के मालिक्यूल आपस में एक वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करते हैं. एक वेव्स की फॉर्म में आपके जो साउंड है वो आपकी वाइब्रेशन के थ्रू आपके लेट सपोज आपके ईयर तक या जो भी रिसीवर्स है आपके वहाँ तक पहुँच जाती है. सो वी कैन से दैट साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच आर
produced by vibrating object. The vibrating object cause the vibration of a medium such as air, water or solid. तो बच्चों आपके पास वाइब्रेशन से आपके जो भी आपका मीडियम है वो वाइब्रेशन में आ जाते हैं और वो वाइब्रेशन की वजह से आपके पास वो साउंड जो है वो एक वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है, जिसको हम कहते हैं साउंड वेव ट्रेवल इन अ फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, जो हम आगे क्लास के अंदर पढ़ेंगे कि कौन किस टाइप की वेव्स होती है। सो बच्चों, अगर आपके पास साउंड के लिए हमने अभी बात की कि आपके पास एक मीडियम होना चाहिए, अगर आपके पास कोई मीडियम नहीं होगा तो साउंड आपके पास ट्रेवल नहीं करेगा। साउंड ट्रेवल इन ऑल स्टेट ऑफ मैटर बट कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। साउंड बच्चों आपके पास हर ऑल स्टेट ऑफ मैटर के अंदर मूव कर सकता है, सॉलिड के अंदर मूव कर सकते हैं, लिक्विड के अंदर मूव कर सकते हैं और गैसेस के अंदर तो मूव करता ही है। तो इसके अलावा वैक्यूम के अंदर जहाँ पर आपके पास कोई भी मीडियम ना हो वहाँ पर साउंड मूव नहीं करता। इसकी मैं आपको आसान एग्जांपल देता हूँ। अक्सर आपके पास जो यूनिवर्स के अंदर आपके पास स्टार वगैरह की ब्लास्टिंग या एक्सप्लोजन वगैरह हो जाती है तो उसकी साउंड हम तक नहीं पहुंचती। उसकी रीज़न ये है कि आपके पास वैक्यूम होता है और वैक्यूम में आपके पास साउंड ट्रेवल नहीं करती, इसलिए हम उनकी साउंड को रिसीव नहीं कर पाते। सो व्हाट इज़ साउंड एनर्जी? साउंड आर बेसिकली प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज़ की वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है। द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट causes the vibration of a medium like air, like water and solid. These vibrations travel in a form of waves. Sound travel in all state of matter but cannot travel in vacuum. Sound energy help us to hear different things. Different चीज़ों को सुनने के लिए हमें sound energy हेल्प करता है। सो दीज आर सम पॉइंट अबाउट साउंड एनर्जी। नाउ कम टू दी conversion of different form of energy. In our daily life we can see that we can convert different form of energy from one form to another form. Like let's suppose when a current pass from a heater, जब कभी किसी भी हीटर से आपके पास करंट फ्लो करता है या उसे पास होता है तो आप देखते हैं कि वो आपके पास जो करंट है वो कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बच्चों आपके पास हीटर से क्या पास हो रहा है? हीटर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास हो रही है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि हीटर हमें क्या प्रोवाइड करता है? हीटर हमें हीट प्रोवाइड करता है। सो इस केस में हमने देख लिया कि आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही है। So when a current passes through a heater, it converts electrical energy into heat energy. Second one, जब आपके पास कोयला वगैरह जलता है, जब कोयला आपके पास जलते हैं तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है? उसके सराउंडिंग में आपके पास हीट प्रोड्यूस होती है और साथ में लाइट भी प्रोड्यूस होती है। When a coil is burned, its chemical energy is converted into heat and light energy. इस केस में कोयला आपके पास क्या है? कोयला एक केमिकल है। केमिकल एनर्जी जो है आपके पास बच्चों दो फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, हीट और लाइट की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। थर्ड केस, जब किसी भी बल्ब से करंट पास होता है तो आपके पास वो करंट जो है, इलेक्ट्रिकल करंट जो है, लाइट एनर्जी के अंदर और हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। मोस्टली बल्ब जो होता है वो आपको लाइट तो देता ही है, लेकिन साथ में वो गर्म भी होता है, तो आपके पास हीट एंड लाइट एनर्जी वहाँ से प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा किसी भी गाड़ियों के अंदर आपके पास पेट्रोलियम जो होता है इंजन के अंदर वो बंद होता है। पेट्रोलियम एक्चुअली क्या है? केमिकल से। केमिकल एनर्जी आपके पास कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी। हीट एनर्जी से आपके पास गाड़ी गर्म वगैरह होती है और इसके अलावा मैकेनिकल एनर्जी से गाड़ी मूव करती है, वर्क करती है। लाउड स्पीकर बच्चों आपके पास साउंड एनर्जी को कन्वर्ट करते इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते साउंड एनर्जी में। साउंड स्पीकर में एक्चुअली लाउड स्पीकर के अंदर बेसिकली आपके पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो आपके पास साउंड एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। सो दीज आर सम फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। नाउ कम टू द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस लेक्चर।
We discuss in this lecture about electrical energy. So first main point is electrical energy. What is electrical energy? Electrical energy is due to the movement of electrical charges through an electrical conductor. Electrical charges moving through a wire is called electricity. Electrical energy is used for lighting the house and for working of different electrical appliances. Second, we discuss about sound energy. What are sound energy? Sound is also a form of energy which travel in a form of vibration. Sound energy cannot travel through vacuum, but it can travel all physical state of matter like solid, liquid and gas. Sound energy help us to hear things. Third main point, conversion of different form of energy. There are many examples in our daily life which show that the conversion of one form of energy into another form. Some of these are: first one, when current passes through a heater, it converts electrical energy into heat energy. When coal is burned, its chemical energy is converted into heat and light energy. Third, when current passes through a bulb, it converts electrical energy into light and heat energy. When petrol burns in engine of a car, it converts chemical energy into heat and mechanical energy. Loudspeaker convert electrical energy into sound energy. So student, these are the main point of our lecture. So come to the homework. स्टूडेंट, होमवर्क पे आने से पहले मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूँ. आपके एग्ज़ाम के लिए आपके पास आपके ब्लैंक्स के तौर पर आपके जो एग्ज़ाम में मोस्टली आपके पास आ सकते हैं कि कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म. अक्सर आपको ब्लैंक्स में दिया जा सकता है कि जब भी आपके पास कोयल बर्न होते हैं तो केमिकल एनर्जी किसके अंदर कन्वर्ट होती है. आगे ब्लैंक्स बनाए हुए होंगे तो आपको याद होना चाहिए कि when coil is burned, its chemical energy is converted into heat and light energy. इसी तरह ये जितने भी मैंने आपको फॉर्म ऑफ एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होने के बताएं, इन सब को आपने याद रखना है कि कौन सा फॉर्म एनर्जी का किस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो रहा है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आपके पास लाउड स्पीकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, आगे ब्लैंक्स होगा तो आपके पास साउंड एनर्जी याद होना चाहिए. तो ऑल दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी यू शुड मेमोराइज फॉर योर एग्जाम. नाउ कम टू दी होमवर्क. स्टूडेंट, डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड साउंड एनर्जी. आपने अपनी वर्डिंग में साउंड और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में डिफरेंशिएट करना है. साउंड और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या क्या फ़र्क है. सेकंड क्वेश्चन है, हाउ वी कैन कन्वर्ट डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी इन आवर डेली लाइफ. जो मैंने आपको यहाँ पर कुछ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी बताई, इसके अलावा अगर आपके पास अपनी डेली लाइफ के अंदर कुछ एनर्जी की कन्वर्जन हो रही है तो आप वो भी लिखें, और अगर नहीं है तो आप यही लिख सकते हैं. सो स्टूडेंट, आई होप आपके आज के लेक्चर में आपको तमाम मेन पॉइंट्स, होमवर्क और मेन एक्टिविटी क्लियर हो चुकी होगी. इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं. तो आई होप आपको सब क्लियर हो चुका होगा. इसी के साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म होता है. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.